dummy variable. So here we have a सर variable स्क्रीन that शेयर is, नहीं हो रही। sorry, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्योंकि वो वहां से लगी हुई होगी। सही है, दूसरे ग्रुप पर अब सही है। नाउ हो रही है शेयर। यस सर अब हो रही है। Okay, good. Now we are dealing with the condition that is basically question number 2, under root under root 3 plus of sine of x, 3 of cos of x of d of x. Now we want to integrate 3 of cos of x d of x over 1 plus 3 of sine of x radical. So in this technique we substitute the variable into a dummy variable. सही है, the dummy variable, let's say it is u. For example, we substitute 1 plus 3 of sine of x is equals to u, and then differentiate both sides with respect to x, and because here we have a main variable that is equals to x. सही है. Now the constant part will be 0 and 3 as it is over here. Sine of x will be equals to cos of x, and that would be equals to du by dx. If we transposition of d of x, and then we obtain the value that is equals to uh, 3 times cos of x of d of x will be equals to d of u, or you can say, बस सही है, इतना ही पुट कर लें, डायरेक्टली सब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. Now 3 times cos of x of d of x will be equals to d of u, and radical of 1 plus 3 of sine of x will be equals to u. Therefore, equation A will be equals to, means under root, 3 of cos of x over 1 plus 3 of sine of x dx. That would be equals to what? That would be equals to 3 of cos of x d of x will be equals to d of u over radical 1 plus 3 of sine of x, that would be equals to u integral, and finally we have and finally we have that is equals to u power minus 1 by 2 of d of u. Since we know that the basic formula of the integration, that is uh, u, yeah, x power n of integral of d of x will be equals to, added the power in the axis and denominator plus the arbitrary variable. Therefore, similarly, u by power minus 1 by 2 of d of u will be equals to what? एक पावर ऐड कर दो, u by power minus 1 by 2 plus 1, and denominator certainly contain that is equals to minus 1 by 2 plus of 1 plus the arbitrary variable, and minus 1 by 2 plus 1, 1 minus 1 by 2, half, 1 minus of half, it will be equals to half, and that is half, and that is actually half plus of c. And we know that if the denominator certainly contain a half, that would be the twice of c. Obviously the denominator of the half will be twice,
then finally we obtained reopen the substitution, that is u power 1 by 2. Since we know that u equals to what? 1 plus 3 times of sine of x, because question is given in a variable x, u is equals to 1 plus 3 sine of x, and finally we obtained 2 times u will be equals to 1 plus 3 of sine of x, and whole thing is 1 by 2 plus of c, or you can say 2 times radical of 1 plus 3 sine of x plus c. This is the substitution approach. Integral of this thing equals to this. This thing means integral of 3 of cos of x dx 1 plus 3 of sine of x will be equals to this. सर ये क्वेश्चन एक दफ़ा और समझा दें. Substitution technique. In this technique, we substitute the main variable into a dummy variable. Here we have a main variable with respect to x, that is x, and we basically introduce a dummy variable that is called u. Now taking the derivative on both sides, let we suppose, yeah, let we put 1 plus 3 of sine of x will be equals to u. If we take the derivative on both sides, then we obtain 3 of cos of x du by dx, and after transposition we obtain 3 of times of cos of x dx is equals to du. Therefore equation a will be equals to 3 times cos of x of d of x is d of u, and 1 plus 3 of sine of x will be equals to a dummy variable that is u, and radical आपके पास था. Now if we transposition the value from the denominator to the numerator, radical will be equals to 1 by 2, and here radical change into minus 1 by 2. Okay, now we know that the basic formulation of the integration, that is uh, x to power n will be integral of x to power n, that is equals to x power n plus 1 over n plus 1 plus c, and where c is the arbitrary constant. Now if we take the integral of x to power n plus 1, sorry, u to power minus 1 by 2, that would be equals to u to power minus 1 by 2 plus 1, and certainly denominator contain minus 1 by 2 plus 1. सही, जो पावर होती है ना वही डिनोमिनेटर में आ जाता है. This is the basic technique, a basic formulation of integration. Now, since we know that minus 1 by 2 plus 1 will be 1 by 2 positive, and 1 minus of half is half. If the denominator contain half, it means it is the new 2 times, not the half. Basically, uh, मतलब डिवाइडेड का डिवाइडेड विल बी न्यूमिनेटर में आ जाता है, तो डिवाइडेड का डिवाइडेड दैट इज 2 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई हो गया ये ऊपर आके. नाउ u of half plus c, since we know that u is equals to 1 plus 3 sine of x, we open the substitution and remove the dummy variable. Now we are removing the variable dummy. Dummy means यही है कि आपके पास जो है वो solution में actually पार्ट तो किया लेकिन उसके बाद वो रिमूव हो गया. 1 plus 3 of sine of x 1 by 2. Now that would be equals to under root 1 plus 3 of sine of x. This is the approach one. This is the technique one to solve the integration, and this approach is called substitution approach because here we are substituting a variable. हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसमें? सर ये कंप्लीट सॉल्यूशन एक दफा दिखा दें.
अच्छा, मैं 85 कैनवस स्केल पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ. नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन इन अ वन फ्रेम. That is नहीं शो हो रहा सर. शो नहीं हो रहा. कैनवस स्केल इज 85 ना. और किसी की सर स्क्रीन पे शो 100. 100 पे लीजिए. वो उसको माइक्रो लेवल पे शायद चला गया. दैट्स व्हाई. नाउ एट 100 पे एक फ्रेम पे तो नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन का पार्ट हटा दें एक, तो ये एक ऑलमोस्ट अ फ्रेम. सर जी. ये जो आंसर की जो राइट लेफ्ट साइड पे लिख दें इंटीग्रेशन के साथ जो आएगा, अच्छा, वो पिक करने में थोड़ा मसला हो रहा है. सर वो निमिषा का मैसेज आया था, वो बोल रही थी उनका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो वो अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही. कौन? सर वो निमिषा. अच्छा अच्छा अच्छा, सही. क्या पॉलिसी डिसाइड हुई है कि अभी जैसे कि मेरा सिर्फ मिड रहता है, कुछ ऐसे भी हैं जिसका फाइनल और ओके 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 ओके. यार ये भी एक इशू हो गया है ना, अटेंडेंस उस पे वीएलई पे नहीं आ रही है. ओके, क्या कह रहे थे तुम? लेफ्ट साइड वाली वैल्यू पुट कर दूं? अच्छा भाई. नाउ solving the issue. ओके 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 ओके. नाउ अच्छा जी, कहाँ थे हम? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2. Since on the left side we have integral of 3 of cos of d of x over 1 plus 3 times of sine of x containing in a radical, and the integration of this will be equals to this. Okay. जी सर. Now moving further, for substitution approach. अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 is basically known as definite integral. Now 5 6 is indefinite integral, and 5 and सर 6 is टोटल 6 ही basically करने. definite. नहीं नहीं जी, 6 नहीं करने. मैं 6 एक जैसे हैं ये बोल रहा हूँ. these 6 are of similar type ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये आप 6 खुद से भी कर सकते हैं. नाउ 1 to 6 में से आप कोई इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन सॉल्व करवाने में? Sir, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6. ओके सर 5 ओके भी. ओके. 5 भी. अब ये एक एक करके अगर बोलोगे ना तो सारे क्वेश्चन ही सॉल्व मुझसे ही हो जाएंगे. तो ओके, फर्स्ट हम लोग 6 करते, पहले 5 कर तो देते हैं, सर फिर 6 5 कर देते हैं. सर 5 नहीं सॉल्व ओके करना ओके, है. दोनों कर देते हैं, दोनों कर देते हैं, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं तो दो कर देते हैं. 5 and 6. नाउ
solving question number 5. That is actually 116 times x over 8x square plus 2. 16 times x. 16 times x of d of x over 8x square plus 2. Now 16 times x dx over 8x square plus 2, 0 to 1. The movement is about 0 to 1. This is question number 5. This is question number 5. Now, how to solve? Now first we have to substitute. देखिए जो चीज the thing which is containing a larger power या greater variables, then you have to substitute these values ना. तो आपके पास कोई बेसिक मेथड नहीं है कि यार आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसको नहीं करोगे. आप ये चेक करते हो भाई जो कि बेसिकली वेरिएबल ज्यादा है, पावर जिसमें ज्यादा आ रही है उसको सब्स्टिट्यूट करके हिट एंड ट्राई करते हो. नाउ हियर वी आर हिटिंग एट 8x square plus of 2. Okay, तो let's see, put करते हैं. 8x square plus 2 will be equals to a new variable, dummy variable called u. आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट कर लो वेरिएबल को. Now differentiate with respect to x. Sixteen x, 18 times 8 times 2 is 16x. Derivative of 2 is 0. Du by dx. And अगर मैं इसको ग्राफ 16 times of x to d of x is du. Okay. Now, if this is equation A, चल मैं वीडियो सेव करके ना मुझे बता देना, फिर मैं उसको वहां से उसका लिंक वहां डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि एटलीस्ट यू हैव अ सॉल्यूशन. जी क्या 16 times x of d of x is du over 8x square plus 2 is u. Now this is typical one na, 1 over u of d of u moving from 0 to 1 will be equals to what? We know that, since we know that. अच्छा, एक प्रीवियसली चीज थी, डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है? डेरिवेटिव logarithm of x. 1 upon x. Good, good, good. Now इंटीग्रल ऑफ 1 over x क्या होगा?
यहाँ से सीधा गए थे, ln x अब उल्टा आएंगे तो यकीनन ln x होगा। मींस आप जब कभी भी किसी भी टर्म का डेरिवेटिव लेते हो, कोई भी टर्म है जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो, अगर याद करो ln ऑफ 5x है, फर्ज कर लो, इसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो कैसे लेते हो? ना, और 5x और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। गुड 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 1/5 of x derivative of 5 of x, isn't it? यही बेसिक तरीका था, और फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये और वो आपने सारी बातें करी। मतलब जो टर्म यहाँ पर है उसको डिनोमिनेटर में ले गए थे और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद था, मतलब डिनोमिनेटर में टर्म आ गई इन डिनोमिनेटर, और डेरिवेटिव कहाँ मौजूद था? वो ऊपर मौजूद था। ln 5x का भी सर x होगा ना, इंटीग्रेशन ln x 1/5x डेरिवेटिव ऑफ ln x क्यों होगा? 5 है उसका होता है ना। फिर जो टर्म्स मौजूद होती हैं, जो ब्रैकेट्स में मौजूद होती हैं, उसका आप डेरिवेटिव लेते हो ना, जस्ट लाइक दैट। तो नाउ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ 5 of x। नोट करें प्रॉब्लम क्या है। जो टर्म डिनोमिनेटर में, जैसे 1/u है, 1/u का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ln u ln ऑफ u प्लस ऑफ c। अच्छा, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स जो वर्टिकल साइंस लगाई जाती हैं, या इंटरमीडिएट लेवल में नहीं थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बोस्ड की जा रही होते। रीजन बिहाइंड इट बिकॉज ln ऑलवेज पॉजिटिव, ln कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी यूज दिस साइन। नाउ these values have a certain limit moving from 0 to 1, but remember the point, whenever you are substituting na, remember the point, this is the very mistake. Whenever you are substituting variable, you must change the limits। तो आपने लिमिट्स को भी चेंज करना होता है। अब ये 0 से 1 लिमिट नहीं रहेगी। 0 से 1 लिमिट जब थी, जब आपके पास फंक्शन जो था वो x वेरिएबल पे था। नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू, सर पीछे तो सर सिंपल लगा था इंटीग्रेशन, तो सर यहाँ पे ln ही क्यों? सिंपल इंटीग्रेशन लगा था, ln क्यू लगा था? ये राइट साइड देखो ना, इतनी लंबी। ln x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। अब 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ln x, मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका इंटीग्रल ln हो जाएगा। तो हमने यही काम किया है। ये पहली दफा है तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिमिट्स, लिमिट सब्स्टिट्यूशन, ये जरूरी है। मतलब हमारे पास u इज इक्वल्स टू 8x² प्लस 2, और लिमिट स्टार्ट हो रही है 0 से, एट x इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 टाइम्स ऑफ 8 इज 0। एट x इज इक्वल्स टू 1, 0 से 1 लिमिट मूव करी है ना, तो that would be equals to what? x² is obviously 1. 10 8 plus 2 is obviously equals to 10. So limit in terms of u is moving from 2 to 10. So limit is moving from 2 to 10. ये जरूर करें चेंज, ये चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन खराब हो जाएगा। Now that is limit जो है वो हमारे पास 2 to 10 मूव कर गई है। सर ये जो लिमिट की वैल्यू हमें गिवन होगी हमेशा डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट होगी। couldn't get you, मतलब कैसे सब्स्टिट्यूट होगी, क्या कह रहे हैं? सर ये जैसे Denominator? आपने ये साइड पे रेफर किया है लिमिट्स की हाँ, हाइट अच्छा अच्छा के अच्छा, नीचे। हाँ हाँ, तो आप साइमल्टेनियस कर सकते हैं, नो इशू।
आप लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एक्चुअली. दिस इज द लिमिट सब्स्टिट्यूशन. दिस इज लिमिट सब्स्टिट्यूशन ना. सर हर क्वेश्चन में इसी तरह होगी. मींस आप इसको सब्स्टिट्यूशन जब आप कर रहे हो ना उसी के सामने कर लें. ठीक है. सही है. मींस आप सब्स्टिट्यूशन जब आप कर रहे हैं इसी के सामने कर लें. आई एम नॉट टोटली इंटरेस्टेड ना द मेथड वे, द फिक्स्ड वे. आई एम इंटरेस्टेड इन अ कॉन्सेप्ट्स वे ना. कॉन्सेप्ट्स आपका कॉन्सेप्चुअल क्या कॉन्सेप्ट्स इससे डेवलप हो रहे हैं. लिमिट्स क्यों सब्स्टिट्यूट की जा रही है? क्योंकि वेरिएबल्स चेंज हो गए. तो उस वेरिएबल पे असाइनिंग ये थी, तो इस वेरिएबल पे असाइनिंग ये. और सर दूसरा ये एलएन वाली बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पे एलएन लगा क्यों, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एलएन लगेगा. ये तो एक क्वेश्चन है. मतलब आप अगर देखें, हमेशा याद रखें डेरिवेटिव्स जब आप कर रहे होते हैं, जैसे मैंने रफ पर आपको ये समझाया, whenever we are taking the derivative, the derivative of ln x is 1 over x. Now the integration is the basically performing a anti-derivative. So आप एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो आप ln x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद है? सर मुझे डेरिवेटिव तो याद है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ. नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ. पहले आप मुझे बताएं ln जी x का जी. डेरिवेटिव वन क्या अपॉन है? एक्स. वन अपॉन 1 ओवर x. आपको कैसे याद है 1 ओवर x होता है? सर जब भी एलएन होता है तो वो उसके साथ जो फंक्शन होता है वो अपॉन में चला जाता है. अपॉन में. अब इसका उल्टा सोचते हैं. जब भी अपॉन में होता है उसको आप बेसिकली जब उसका इंटीग्रल ले लो तो डेरिवेटिव हो जाता है. जी. लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में देख के मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि यहाँ पे एलएन क्यों लग रहा है. इसका आंसर यही है कि आपने जब ln x का डेरिवेटिव ले रहे थे ना, तो आप 1 ओवर x कर रहे थे, तो आपको कैसे आइडिया हुआ 1 ओवर x हुआ? इसका मतलब ये. मतलब मैं आपको आसान लैंग्वेज में और समझाने की कोशिश करता हूँ. इफ यू आर नॉट टेकिंग मी, बेसिकली आप कभी भी इस तरह से सोचते हैं कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर कंटेन द जीरोस. मींस मैं एक लोकल तरीके से समझाता हूँ. बिल्कुल रॉ तरीका क्या है इसका? रॉ तरीका ये है 1 over u. Now we are taking the derivative of the u. This is the rough work and the student approach. If we सही है यहाँ तक? मैथमेटिकली सही है? कोई मसला तो नहीं है? If we take the integral of this term, ये सबसे ज्यादा मिलता है हमें कॉपीज के अंदर. Okay, isn't it? जी सर. Now u पे पावर 0 over -1 plus 1, that is 0. Okay. Now if any terms certainly contain the denominator 0, yeah, contain the 0 in the denominator basically. So you can say it is what? This infinite. How can you equals to this? Undefined. तो इसका मतलब होता है इस तरह का कहीं पे भी ये टर्म बन रहा होता है ना, तो हम फौरन ही कह देते हैं यहाँ पे ln आ रहा था, आपने गलती कर दी है. यहाँ पे ln आ रहा था, आपने गलती कर दी है. और यही प्रॉब्लम है कि जब कभी भी -1 आ रही होती है तो आप उसको 1 ओवर मतलब 1 ओवर u का मतलब ये है ln, इसका इंटीग्रल यकीनन रिवर्स स्टेप एंटी डेरिवेटिव विल बी ln ऑफ x, नॉट जस्ट लाइक दैट. आप यहाँ मूव करोगे, दिस इज ln ऑफ x. सर तो ये काम हमने लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे u पे पावर समथिंग थी, 1/2 थी. जब आप उसको ऊपर लेके गए तो वो टर्म्स जो है बेसिकली प्रॉब्लमेटिक नहीं बन पाई. जबकि यहाँ पे आपके पास -1 थी. अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक टर्म है. समझ में आ रहा है पॉइंट? दिस इज द प्रॉब्लमेटिक टर्म कंटेनिंग द इंफिनिटी ना. नाउ क्योंकि इफ उसके यू आर शायद डिनोमिनेटर में रूट था. डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली रूट था, मतलब 1/2 थी ना पावर. रूट का मतलब 1/2 थी ना पावर. सो हाउ कैन यू डू दिस?
और एक्चुअल द टर्म वी आर कैलकुलेटिंग ना, वी आर परफॉर्मिंग एंटी डेरिवेटिव। आप लोग ये भूल जाते हैं। मींस ये इस वक्त आपने डेरिवेटिव परफॉर्म किया था, उसका रिवर्स स्टेप्स आप यूज कर रहे हो। नाउ वी आर मूविंग बैकवर्ड। याद रखें, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आप फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, बैकवर्ड थिंकिंग होती है। द बैकवर्ड थिंकिंग, it is only possible when you know the forward thinking na. If you know the ln x is 1 over x, now the backward of 1 over x is ln x ना। मतलब आप आपसे मैं ये सवाल करूंगा एक प्राइमरी या फिर एक मॉन्टेसरी लेवल पे कि यार 100 से बैकवर्ड काउंट करो, तो आपको बोलोगे 100 से पहले आपको कैसे पता चल गया था सर 100 से पहले 99 आता है। तो मैं उस वक्त यही कहूंगा ना, यार आपको कैसे पता चला था कि 99 के बाद 100 आया था। आपका सवाल ये था। समझ में आया कुछ? जी सर, आ गया। तो जस्ट लाइक दैट कि आप अगर कभी भी बैकवर्ड काउंटिंग करते हो तो आप ये समझते हो कि आपको पहले फॉरवर्ड काउंटिंग बहुत पक्की होनी चाहिए। इट मींस दैट इफ यू नो द डेरिवेटिव वेरी वेल ना, you can estimate or calculate the anti-derivatives. Now we are calculating the anti-derivatives terms now. If we know that okay, 1 ln x is 1 over x, if we know the derivative of ln x is 1 over x, then we can calculate the 1 over integral of 1 over x, anti-derivative of 1 over x is ln x। सही है? और ये यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियां होती हैं, हम अभी से नहीं बहुत अरसे से, सिंस आई एम वर्किंग 2014 ना, तो बेसिकली ये मैं 2014 से ये गलतियां देख रहा हूँ। तो दिस इज बेसिकली द टर्म -1 to +1, इस तरह से करके स्टूडेंट्स इन्फिनिटी बना के छोड़ के चले जाते हैं क्वेश्चंस में। तो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। मैं आपको सिर्फ रॉ मटेरियल बताने का मकसद यही था कि ये गलती हमें सबसे ज्यादा पेपर्स में नजर आती है ऑन अ फिजिकल नोट। सही है? नाउ जी, जैसे कि आपने बताया कि ln x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 ओवर x हो जाएगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे वो उल्टा ln x हो जाएगा, है ना सर? एग्जैक्टली। तो फिर जब हम लोग 1 ओवर u हाफ ले रहे हैं तो ये भी सर हमारे पास इसका जो उलट होगा वो 1 ओवर u ही नहीं हुआ। बेसिकली आई एम टेलिंग दैट इज क्यों नहीं हुआ। देखो, हाँ, हमारे पास जो टर्म्स है ना, वो आप कुछ इस तरह से डिजाइन हो रही है जिसको आप शायद प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे हो डेरिवेटिव्स को ना। तो डेरिवेटिव्स क्या है एक्चुअली, उसको समझ में आएगा तो वो इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। जैसे 1 ओवर u पे पावर 1/2 थी, एक्चुअली दिस इज, यू कैन से कि यार d ऑफ u है, अब इसको यूं लिख लो, u पे पावर -1/2 ऑफ d ऑफ u, this is, this would be equals to this. Now if we are taking the integral means we are adding the power or antiderivative, -1/2 plus 1 -1/2 plus 1। तो इसका क्यों नहीं हो सकता? अगर इसके ऊपर पावर सिंगल टर्म होती, इन केस सिंगल टर्म होती, मींस जस्ट लाइक दैट u पे पावर 1 है। अब हम परफॉर्म करते सिमिलर प्रोसीजर। एक्चुअली आप लोग मेथड्स दिमाग में रख के चलते हो ना कि हाँ ये मेथड फार्मूला बना हुआ है, फार्मूला इस पे लग रहा है तो इस पे क्यों नहीं लग रहा। वो इस वजह से नहीं लग रहा बिकॉज वी आर choosing a wrong approach at this condition. At this condition, the derivative of this term is 1. The derivative of denominator is 1. It is present, then we apply the integral. It is just like that. I told you, just like that. ये अगर आपने green parameters को note किया है ना, you can easily understand me. If denominator, the derivative of the denominator is present in the numerator, सही है ना, the derivative of the denominator is present in the numerator, then we can apply or close the terms into the ln. If the derivative of the function is present against to him, then we can add the power. ये दो approaches होती हैं जिसको आप अगर in terms of
u और पे पावर 1/2 और u पे पावर 1 करके सॉल्व कर रहे हो तो इट मस्ट बी क्लस्टर इन इंटरमीडिएट लेवल ना, इसको क्लस्टरिंग इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाना चाहिए था। नाउ मूविंग फर्दर, ln u पे पावर moving from 10 to 2, this is upper limit and this is lower limit, and we have evaluate ln 10 minus ln 2. So if you want to estimate the value you can, but I am not interested to estimate or taking a decimal part. ln 2 minus ln 10 you can basically आप यहाँ पे भी आंसर करके छोड़ सकते हो, बट हाँ आपने डेफिनेट है तो यकीनन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बुक फॉर्मेशन वाले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ln की लगा दें, ln since we know that metric class logarithms, I think chapter number 3, ln a minus ln b is equals to ln a over b, I think so. So ln 10 by 2, that is ln 5. That's all. तो आप मैट्रिक क्लास में यकीनन ln नहीं पढ़ते, log पढ़ते हो, but the properties are same. The properties are same. log means STBBs in textbook board में, but if you are coming from the O level or D series, you are very much familiar with the ln and natural logarithms. Okay, this is the substitution approach for definite integral in a single frame. Now you can ask me a question if you have. सर ये जो ln 5 आया है इसमें जो 5 है हम पैरेंथेसिस लगाएंगे या कुछ और? सॉरी मैं समझा नहीं। सर ये जो आपने ऊपर ln 10 और माइनस ln 2 लगाया है, हम 10 और 2 के साथ क्या लगाएंगे? मीन्स जैसे कि आंसर निकाला आपने ln 5, हम 5 को ऐसे ही छोड़ दें पैरेंथेसिस या जो आपने जो ऊपर मॉड के पता नहीं ये जो लगाए ये लगाएं? दे आर पॉजिटिव ना, एब्सोल्यूट जी कहते हैं इसको, दिस इज एब्सोल्यूट कॉल्ड लगाएं, सही। absolute values are always positive. If it is it is already positive, why we exclude the absolute term ना? जी If it सर, is थैंक यू। already positive ना, then हम इसको अवॉइड कर देते हैं, that's why. और किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा जरूरी नहीं है आप मतलब ln 10 माइनस ln 2 पे अपना आंसर छोड़ दो, जरूरी नहीं है आप ln 5 तक जाओ, क्योंकि गलत करने से बेहतर है कम कर लिया जाए इन अ मैथमेटिक्स। सर आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो जा रही है।
किसी को इशू और हो रहा है कि आवाज नहीं आ रही है? नो सर। मैं यार सब क्लियर। मैं थोड़ा सा नो सर। पॉज लेके बोल रहा होता हूँ क्योंकि वो क्लास पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ रहे होते हैं, तो मैं वो भी रिप्लाई साइमल्टेनियस कर रहा होता हूँ, तो मैं थोड़ा पॉज इस वजह से ले लेता हूँ, दैट्स वाई ना। बाकी हो सकता है आप समझ रहे हो इसको कि मेरी आवाज रुक रही है, ऐसा नहीं है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था एंड देन नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या था भाई? Pi by 4 to, oh sorry, pi by 3 to pi by 4. Pi by 3 means 60 degree to pi by 4. Pi by 4 means अच्छा लोअर लिमिट पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 से पाई बाय 3, पाई बाय 4 से पाई बाय 3 मूव कर रहे 45 डिग्री से 60 डिग्री, सीकेंड स्क्वायर जेड टेंजेंट ऑफ जेड। अब देखो मुझे हो सकता है मैं क्योंकि इस ग्रेड पे हूँ कि आप डायरेक्टली बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना डायरेक्ट लिंक चल रहे हैं कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स ऊपर मौजूद है, इसका आंसर आ जाएगा एल एन टेंजेंट एक्स जेड। आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो यू वी करते हुए चलोगे, लेकिन एल एन टेंजेंट जेड हो जाएगा और फिर जेड की जगह पे तुम पुट करोगे पाई बाई 3, तो एल एन टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस एल एन टेंजेंट पाई बाई 4। अब टेंजेंट पाई बाई 3 क्या होता है, टेंजेंट पाई बाई 3 होता है अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो और टेंजेंट पाई बाई 4 1 हो जाता है, तो एल एन 1 मतलब आप नोट करोगे तो एल एन टेंजेंट पाई बाई 3 अंडर रूट एल एन अंडर रूट 3 माइनस ऑफ 0 आ जाएगा, इसका माइनस ऑफ 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो मैंने डायरेक्ट देखते ही आंसर बता दिया। जैसे मैं इसको देखता हूँ, फर्ज कर लो साइन ऑफ यू कॉस ऑफ यू, इसके ऊपर पावर 1/2 है, बराबर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद था, यहाँ पे बेसिकली ऑब्वियसली टर्म बराबर में मौजूद है तो इसका डेरिवेटिव बराबर में, तो साइन ऑफ यू का डेरिवेटिव कॉस बराबर में मौजूद है तो एक पावर ऐड हो गई, मतलब साइन यू वी पे पावर 1/2 है तो एक पावर ऐड कर दी तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ऑफ 1 3/2, दैट विल बी 3/2। सिमिलरली अगर आप इसको देख रहे थे तो 1+3 ऑफ साइन ऑफ एक्स पे पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे if you are moving in a numerator that would be equals to 1+3 sin of x whole पे पावर -1/2, -1/2 बराबर में डेरिवेटिव मौजूद था, -1/2 प्लस 1 जो हो जाएगा वो प्लस ऑफ 1/2, तो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स पे पावर +1/2 और डिनोमिनेटर कंटेन +1/2, दैट वुड बी द 2 टाइम्स। ये आंसर था इसका भी, थोड़ी देर पहले हमने चेक किया, तो 6 भी इस तरह से ही डायरेक्टली मुझे नजर आ रहा है सॉल्व होता हुआ, लेकिन यही है कि हमें को सॉल्व करना है तो हम करके दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन अप्रोच से। नाउ कहाँ चला गया, ये रहा, दैट इज टेंजेंट जेड, न्यूमिनेटर है सीकेंड स्क्वायर जेड, टेंजेंट जेड ओवर सी, नहीं, सीकेंड स्क्वायर जेड ओवर टेंजेंट जेड।
सर क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दें। सर 10 में टेंजेंट स्क्वायर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। डेरिवेटिव में मसला होगा। पाई बाई 4 टू पाई बाई 3। फॉर सब्स्टिट्यूशन अप्रोच पुट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज z। टेंजेंट z का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square z du by dz, and finally we have secant square z of d of z is equals to d of u. Okay, now equation A, secant square z of d of z is equals to d of u, and tangent of z is basically equals to u. Now substituting the limit substitution, u is equals to tangent of z at z equals to what? Pi by 4. Lower limit is pi by 4. Tangent pi by 4 means tangent 45 degree. If you ask this to the calculator, that gives you the answer 1. Or at z is equals to pi by 3. Pi by 3 means, it means 45 degree na. 45 degree scale, Rodian scale, this is अंडर equal, रूट 3 and obviously it would equals to under root 3. Pass this to the calculator. Tangent of pi by 3 is actually equals to under root 3. If you convert your calculator into radian mode, वो आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा। तो 1 2, मैंने तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली बताया था, देखिए वही आंसर बनेगा। नाउ 1 ओवर समथिंग, मतलब मीन्स आपके पास जो टर्म उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ln ऑफ u। और अब देखिए यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमारे पास मॉड का काम नहीं बचता है। ln ऑफ अंडर रूट 3 माइनस ln ऑफ 1। we know that ln 3 under root 3 तो as it is रहेगा। ln 1, if we ask this to the calculator, it gives you 0। ln 3 कैलकुलेटर से पूछोगे 0, और ln 1 कैलकुलेटर से पूछोगे तो 0 होता है। और ln 3 अंडर रूट जो है वो पॉइंट्स में होता है, तो आप इसको यहीं ड्रॉप कर दो। हाँ जी बोले। दोबारा दिखा दें।
ओके ओके जी, कोई मसला प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन नंबर 4 करवा दें। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या? लेट्स सी 1 2 3। देखिए मैं फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। आप देखें अगर इसको डायरेक्टली अप्रोच करें, इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ना। यू कैन से दैट के क्वेश्चन नंबर 4 में कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्चुअली कॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉट। आवाज नहीं आई मुझे बिल्कुल भी। फ्लैश आया कोई? कॉट का डेरिवेटिव एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट? -1 सॉरी, cosec square x sir. कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर ना, ऑब्वियसली कोसेक स्क्वायर। Obviously the term we have a cot here, the derivative of cot is just right there na. If we take put cot of what is variable, actually the variable thing is cot of y variable thing. Here we have cot of y is equals to u. Then if we take the derivative, then derivative with respect to y सर माइनस कोसेक नहीं होगा? minus times of cosec square of y is equals to du by dy. Now if we transpositions the value CSC, cosec means actually the CSC. सही है, CSC y square d of y is actually minus of d of u. Now the equation A becomes what? Equation A क्या बन चुकी है? Cot u पे पावर 3, कॉट की जगह पे u लिख दिया पावर 3, और कोसेक स्क्वायर्ड y ऑफ d of y इक्वल्स टू व्हाट? माइनस टाइम्स ऑफ d of u, minus times of d of u. So finally we have what? Minus u of 3 of d of u, and that would be equals to what? u पे पावर 3 है, एक पावर ऐड कर दो, सही है। 3 + 1 4/4, 4/4, एंड फाइनली u की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके सर u की वैल्यू क्या cot y पुट करेंगे? ऑब्वियसली जो सब्स्टिट्यूट करिए वही पुट करेंगे, कॉट वाई पुट करेंगे ऑब्वियसली। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच ना, कॉट वाई का डेरिवेटिव बराबर में कोसेक है, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट कॉट 4/4 वाई बेसिकली आंसर ना, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो।
सर तो ये सब्स्टिट्यूशन में आपने पावर को क्यों इग्नोर किया है? वेयर? ये पुट cot y is equal to u cot cube y है ना? हाँ, वो इस वजह से मैंने इग्नोर किया है क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से एक बात चल रही है। आपने अगर नोट किया हो, ये अभी से इग्नोर नहीं कर रहा मैं, ये पहले क्वेश्चन से इग्नोर कर रहा हूँ। अगर आप नोट कर रहे हो, you can say that here power is equals to what in this question, question number 2 whole पे power क्या थी? 1/2. Here I ignore the power. Okay, in question number 3 यहाँ पे तो 1 था तो हमें इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम्स में भी 1 था तो इग्नोर नहीं करने की जरूरत पड़ी। whenever we have a power something power ना, we are actually the ignoring the term, तो हमें इग्नोर करने की जरूरत उस वक्त पड़ रही थी जैसे यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 2 में भी। इसी तरह से मैंने आपको बताया साइन ऑफ यू का डेरिवेटिव बराबर में तो साइन वी को आप यू लोगे, सही है, पूरे होल पे पावर को नहीं लोगे, सही है। तो इसी तरह से कॉट ऑफ y को आप u लोगे, कॉट क्यूब ऑफ y को पूरा नहीं लोगे। ओके, इट इज जस्ट लाइक दैट। जस्ट थिंक ना, जस्ट थिंक कि डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बारे में सोचे आप कि भाई जो टर्म है ना उसका बराबर में उसका डेरिवेटिव है, जो टर्म है उसकी बेस को आप चेक करोगे, क्योंकि आप बेस का डेरिवेटिव बराबर में लेते हो ना, होल पावर का नहीं लेते। आप ये कहते हो पावर पहले एक पावर का डेरिवेटिव ऑफ द बेस। Now what is derivative of the base? Base derivative is equals to what? Cosec square of y. Now the cosec square of y is next to the cot of cube of y ना। तो if we want to doing the substitution approach है ना, तो we substitute cot of y is equals to u। अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट करने चले जाओगे तो ऑब्वियसली पूरी टर्म सब्स्टिट्यूशन पे आ जाएगी, इम्पॉसिबल, लीडिंग टुवर्ड्स द इम्पॉसिबल वैल्यूज ना। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 7 8। अच्छा, 7 क्वेश्चन के बारे में क्या राय है आप लोगों की? आप लोग सब जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? जी सर। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7? सर ये जो रूट एक्स है बाहर, हम्म, अगर हम इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें तो ये एक टर्म बन जाएगी, फिर हम उसको u सपोज कर लेंगे। ओके, फिर उससे सॉल्व हो जाएगा ये? सर से वंडर रूट एक्स को सपोज कर लो। सिर्फ अंडर रूट एक्स को सपोज कर ले। ओके, उससे सॉल्व हो जाएगा? सिर्फ साइन को सपोज करेंगे सर, साइन से कॉस निकल जाएगा। साइन कहाँ से आ गया इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, वापसी आ जाओ। जी जी, सॉरी सर, सॉरी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7, इसको अंडर रूट एक्स प्लस, सॉरी ब्रैकेट्स अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ ब्रैकेट क्लोज। ओके, लिखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का भाई 8 रूट एक्स प्लस 1 radical or times of d of x. Okay, this is question number 7. Okay,
नाउ गिव मी योर सजेशंस, क्या करना चाहिए भाई? ओके 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 10 मिनट है। कोई और क्लास है इसके बाद? यस सर। यस सर। चलो मैं इसमें तेजी से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। पुट अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू यू। इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को आपने यू सपोज कर लिया। क्यों सपोज कर लिया? मैंने कहा था कि जो टर्म्स बड़ी नजर आती हैं आप उसको सपोज कर ले और हिट एंड ट्राई करें। हो सकता है इससे सॉल्व ना होता, हो सकता है इससे सॉल्व हो जाए। डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं इसको, x का पावर 1/2 है, प्लस 1 है, और यहाँ पर आ गया du/dx। तो पावर पहले एक पावर कम हो जाती है 1/2 और एक पावर कम हो गई x पे पावर -1/2। u कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है du/dx। नाउ अगर आप नोट करें माइनस पावर है ना, माइनस को प्लस करना है, डिनोमिनेटर में ले जाओ, +1/2 लिख सकता हूँ या रेडिकल भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आ रहा है डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में 2। सही है, एक दफा 1 लिख दो, मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो du/dx को अगर चाहो डिवाइडेड में दूसरी तरफ ले जाना चाहो ले जाओ, dx/√x, और 2 को आप ट्रांसपोजिशन कर सकते हो, दूसरी तरफ ले जा सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ d ऑफ u। क्यों किया? क्योंकि अगर आप नोट करो इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को जरा नोट करो, dx एंड दिस टर्म ये आपके पास बन चुकी है, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ du। अगर आप नोट करो तो इक्वेशन ए विद इम्प्लाइज दैट क्या बनेगी, dx ओवर अंडर रूट एक्स किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ d ऑफ u डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू u। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखें, 1 ओवर u ऑफ d ऑफ u ln ऑफ u प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। और अगर आप नोट करें 2 टाइम्स ln u, u के बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपके पास आंसर ऑब्टेन्ड हो गया, जस्ट लाइक दैट। ओके, वो एंड अप करते। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सही क्वेश्चन तो मुझे समझा रहे हैं। हो गया? सही क्वेश्चन एक दफा फिर समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन फिर से समझा रहे हैं। ओके, समर की लेक्चर्स कहाँ जा रहे हैं? कैल में ही जा रहे हैं। ओके ओके, हाँ जी, इसमें करना ये है, क्वेश्चन नंबर 7, 1 ओवर अंडर रूट एक्स ब्रैकेट 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 of d of x, and basically this is equals to, if we take under root x plus 1 is equals to u, if we suppose, if we letting the value under root x plus of u, now after that we are taking the derivative of under root x plus of 1, x equals to whole power 1/2 plus 1. Now if we are taking the derivative, power पहले एक power कम, okay, plus constant derivative will be 0, du over dx on the right side. Now after transposition we know that dx over under root x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने dx को ऊपर ले गए अंडर रूट x से, और 2 जो आ रहा था उसको दूसरी साइड पे ले गए, तो dx ओवर अंडर रूट x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स
ऑफ, ये देखें यहाँ से इस 2 को ट्रांसपोजिशन करी ऊपर ले गए और dx ओवर अंडर रूट x हो गया। नौ इक्वेशन ए को मैं डायरेक्टली विद इम्प्लाइज दैट करके कर रहा हूँ नीचे, क्योंकि मेरे पास पेज ओवर हो रहा था। नाउ तो इक्वेशन ए विद इम्प्लाइज दैट आप लोग प्रॉपर कीजिएगा। dx over under root x is actually equals to 2 times d of u, and under root x plus 1 is actually equals to u. This is the very point. Now 2 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, and क्योंकि constant integration of 1 over u, since we discussed earlier, the 1 over u is equals to ln of u, and we know that in our question we substitute under root x plus of 1 equals to what? Under root x plus of 1 is equals to mu, and we put u is equals to under root x plus of 1. Removing the dummy variable, we get under root x plus of 1 ln times. This is the whole story. तो ये थी आपके पास क्वेश्चन 7 की स्टोरी। अब यहाँ तक कुछ और डिस्कस करना है, प्रॉब्लम है तो फिर बता दें। No, sir, thank you. ओके, किसने लगाया था उस पे रिकॉर्डिंग पे? किसी बच्चे ने? सर मैंने लगाया। इसको स्टॉप कर दीजिएगा ताकि वो फाइल ज्यादा स्ट्रेंथ ना हो, तो फिर वो ओके सर। उसको फिर अपलोड करने में आसानी रहेगी। कौन सा कोर्स है ये? कैल चल रहा था, सही है। सर इसकी शुरू